السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج کے شو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فوک میوزک کی ایک بہت معروف جوڑی، اور ان کے ساتھ موجود ہے پاپ میوزک کی ایک توانا آواز، اور میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں کلاسیکل موسیقی کے دو کوہ ہمالیہ۔ یہ لیجئے، یعنی ہمیں مٹی کر دیا۔ کوہ ہمالیہ مٹی کا ہے استاد جی۔ بیٹا میں نے کب کہا گڑ کا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ موسیقی کے خدا کا نام لے، میں نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا کہ کوہ ہمالیہ ہے۔ آپ کی طرف دیکھیں، آپ کی بلندیوں کی طرف دیکھیں تو انسان کی پگڑی گر جاتی ہے نیچے۔ جنید میاں، آپ نے اچھی نیت سے ہی کہا ہوگا موسیقی کے کوہ ہمالیہ، مگر یقین جانیے سچ تو یہ ہے کہ جب یہاں آتے ہیں اور ان من چلے اور کول لڑکوں کو یہاں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو کوہ ہمالیہ کیا، ہم تو اپنے آپ کو وہ ڈیری محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کھوتا آگے سے کھڑا ہو جائے تو ریڑھی کے الٹنے سے لگ جاتی ہے۔ استاد کرم، میری ایک بات سنیں، آپ اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ بھی موسیقی کی ایک جوہت کے شہنشاہ ہیں، لیکن یہ لوگ بھی موسیقی کی ایک قسم کے شہزادے ہیں۔ شہزادے موسیقی دے سنیا بابا جی؟ آپ نے تو موسیقی کا تخت و تاج ہی برباد کر دیا۔ آپ نے ان کوڑوں کو موسیقی کے شہزادے کہہ دیا جن کو الفبے تک نہیں آتی موسیقی کی۔ ایکسکیوز می، بابا جی ایک گل تو پھر پنچایت بیٹھے گی پنڈ چ، بابو جی پھر یہ گل پنچایت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے گاؤں کے گاؤں جمع ہو کے آپ کو سنتے ہیں۔ گڈ۔ لو بتاؤ، یہ جنید میاں یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ گاؤں میں تو اگر 72 گھنٹے سائیکل چلے تو گاؤں والے تو ادھر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی جنگل سے بندر بھاگ کے گاؤں میں گھس جائے تو سارا گاؤں اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے کیا مثال دی ہے؟ آپ جیسے پڑھے لکھے زیرک آدمی سے اس طرح کی بے وقوفی کی ہمیں کم از کم امید نہیں تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ بھی فنکار ہیں اور بڑے فنکار ہیں۔ آپ بندروں اور سائیکلوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے، مگر آپ نے کبھی شیر کے پنجرے میں بلی دیکھی نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ان کو بٹھانا میرا خیال ہے کہ زیب نہیں دیتا۔ خان صاحب کی گلاں پہ کر دیو، میرا استاد جتھے فنکشن کر کے جاندا ہے نا، اگلے پیسیاں تو بعد نال پورا پائیا 1.5 پا گوشت شاپر چ پا کے دیندے نے۔ پائیا 1.5 پا گوشت۔ ان لوگوں نے کبھی اوجری یا سری نہیں لی؟ ہاں جی گوشت دیندے نے، وہ بھی کچا نہیں پکا۔ ہاں تو روٹیاں رات جنیاں مرضی لے لو، بیبیاں بھیڑاں پکاؤ نہیں ہوندیاں تے۔ اور وہ بھی جیسے بہت زیادہ اچھا گا لے تو ساتھ روٹیاں بھی دے دیتے ہیں۔ سر ہم لوگ تو جب شو کرنے جاتے ہیں ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، چاہے وہاں لاکھوں کا کھانا کھائیں، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے۔ اب بیٹا میں تینوں ہندیاں ویکھیا تیری موٹر سائیکل دا پچھلا ٹائر انج کردا ہے۔ اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سویر دا کچھ نہیں کھاتا ہے۔ چلو خان صاحب، تسی کیڑا لینڈ کروزر تو اترے ہو؟ تسی بھی ستار موڈے تے رکھ کے پیدل انج ہی آ رہے سو جی میں دیہڑی نہ لگے تے مزدور کہندا بھائی جی اج دیہڑی کہہ نہیں لگی۔ استاد جی جب لینڈ کروزر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے چاروں ٹائر ایسے ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں منصف بھی ملزموں کے ساتھ مل جائیں وہاں ٹھہرنے کا کوئی ادھیکار نہیں رہتا۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ آپ یہ حرکت نہیں فرمائیں گے۔ کون سی؟ یہ بائیک آؤٹ کرنے والی۔ تو آپ نے بھی تو یہ وعدہ کیا تھا کہ اب آئندہ آپ ہم دونوں خان صاحبوں کو کوئی جگت نہیں کریں۔ نہیں میں جگت نہیں کر رہا سر، آپ تشریف رکھیں پلیز۔ آپ یقین جانیے یہ تو استاد محترم ہمیں مجبور کرتے ہیں یہاں آنے پہ، کیونکہ ان کو آپ کے چینل کی لفٹ بڑی پسند ہے۔ اکثر یہ لیکن لفٹ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، ہر ہفتے ان کی وجہ سے سروس کروانی پڑتی ہے ہمیں۔ بھائی اکثر یوں ہوتا ہے کہ استاد محترم لفٹ میں چڑھتے ہیں تو وہ لفٹ کی گھنٹی بج جاتی ہے، ٹو 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 ٹو۔ یہ واحد آپ کے چینل کی لفٹ ہے جو بخوشی
बगाए में होश व आवाज उस्ताद मोहतरम को ले आती है। घंटी इसलिए बजती है कि उसमें कुछ कहने की ऑप्शन नहीं है। ਲਿਫਟ ਦੀ ਟੱਲੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। और उस्ताद मोहतरम को कोई ऐसा लिफ्ट विफ्ट का शौक नहीं है, बस अक्सर कोई करवाता भी नहीं है वैसे। ये ना कहिए, ये ना कहिए। क्योंकि बचपन में भी झूले में बैठने से महरूम रहे, इसलिए फिर झूला लेने के लिए लिफ्ट को अच्छा महसूस करते हैं। और बचपन में झूले से महरूमी की वजह ये नहीं थी कि झूले वाला बिठाता नहीं था, असल वजह ये थी कि कैसे उठा के झूले में लादा जाए। मैंने तो सुना है कि उस्ताद मोहतरम का बचपन में जब भी झूला लेने को दिल करता था ना, उस्ताद मोहतरम ऊपर मुंह करके सिर्फ इतना कहते थे, या अल्लाह थोड़ा जा ज़लज़ला। Oh my God! ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। बेटा यहाँ भी आपका उठना बनता था। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਉਠੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੈਰ ਹੋਈ ਜੇ। बेटा मैं उठ गया तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। उस्ताद मोहतरम अगर नहीं कोई रोकेगा तो घर पहुंच जाइएगा। ओहो बेटा अपना मसला बयान करो और चलते बने। हाँ जुनैद मियाँ, बहुत इस वक्त अजीब कैफियत है, अल्लाह। आपको बता नहीं सकते कि कितना भयानक मसला बना हुआ है। क्या हो गया, अल्लाह खैर करे। वो हमारे जो इलाके के काउंसलर टाइप लोग हैं, वो कहते हैं कि 60 से ऊपर जो लोग हैं वो जाके कोरोना वैक्सीन लगवाएं। सही। पहली बात तो ये है कि हमारे शिनाख्ती कार्ड गलत बने हुए हैं। क्या मतलब? हमने उस वक्त रेडियो पे जॉब लेने के लिए उस्ताद मोहतरम ने भी और हमने भी अपनी उम्रें 10 साल ज्यादा लिखवाई थी। यानी शुरू तो ही गलत हो, शुरू तो ही गलत होती। हमने ही गलत, डेट ऑफ बर्थ गलत। नीति आप लोग 60 साल के नहीं हैं? अबे भाई अभी तो 50 को टच किया है अल्लाह के फजल से। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कोरोना मियाँ यहीं रहे तो लगवा लेंगे हम भी। अरे वाला वैक्सीन सबको लगनी है। बोलो देखिए वो तो कह रहे हैं सबको लगेगी ही लगेगी। अभी 60 साल से ज्यादा लोगों को लग रही है, बाद में आपकी भी बारी आनी है। असल में जुनैद मियाँ, उस्ताद मोहतरम वो सुई वाले टीके से बहुत डरते हैं। वो कह रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगने के अलावा अगर पीने वाली कोई दवाई है तो वो बेशक 2 गैलन दे दें, वो पी लेंगे। ये वैक्सीन है, कोई स्कंजबीन नहीं है। उस्ताद मोहतरम बहुत खौफनाक हदों को छू रहा है कोरोना। वैक्सीन लगवाएं, बहुत नागुज़ीर है। आप अगर नकद दे दें तो वो अच्छा है। मेरा मैं ख्याल दे है दूं? अगर वो जितने की वैक्सीन है वो हमें पेमेंट मिल जाए, हम जाके वो अगर हफ्ते का गोश्त खरीद लें तो खुराक अच्छी हो तो फिर भी कोरोना कुछ नहीं कहता। और अगर गोश्त में करेले डाल लिए जाएं तो कोरोना उस घर से ही दौड़ जाता है। सुपर वैक्सीन। हाँ, जहाँ करेले गोश्त को भूना जा रहा हो, कोरोना उस मोहल्ले से गायब हो जाता है। वो मैंने सुना है कि करेले गोश्त भूनने से जो भाप निकलती है ना, वो ली जाए ना तो कोरोना मर जाता है। और अगर दूसरे दिन धनिया गोश्त को तड़का लगा लिया, पापा अगे नहीं महंगाई आ, हुण करेले ते धनिया भी महंगा कराउण लगा है। अगे किहड़े करेले 5 रुपए किलो मिलते ने। आपकी मेहरबानी बेटा, कुछ नकद का ही बंदोबस्त कर दे। हमारे एक पढ़े लिखे शागिर्द ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन जो है ये आवाज पे असर कर जाती है। खुदा का नाम ले, कितनी बार हम वजाहत कर चुके हैं कि वैक्सीन के बारे में जितने ये तवाहमात हैं, गलत बातें हैं, मफरूजे हैं, ये बेसलेस है, बकवास है, जहालत है निरी। खुदा के लिए दुनिया भर में करोड़ों लोग लगवा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ, आप दोनों को कुछ होना है। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪੈਣ ਦੀ ਆ? बता दे मोहतरम, जी बेटा। सारी जिंदगी हम सुई गैस तो लगवा नहीं सके, मेरा ख्याल है सुई लगवा ली। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲ ਦਾ ਸੀ। ਰੌਲੇ
ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਬਦੋ ਬਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਯਕ ਤਰਫਾ ਰਿਸਕ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਕੀਨੜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾ ਆਪ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ तू जे मेरे हमेशा कोल रवे दे मैं दुनिया नू गए देवा बरे बरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जे मेरे हमेशा कोल रवे दे मैं दुनिया नू गए देवा बरे बरे ओ काका ਤੂੰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा कहा यह जा रहा है कि कोरोना खत्म होने के फौरन बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फूडीज हैं फूड व्लॉगर्स हैं उनको जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बाद तवज्जो का मरकज जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा अच्छा भाईजान पिछले दिनों जद्दा में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और जद्दा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आपस में ताउन के बाद वहाँ पे पाकिस्तानी खानों का मेला मुनक्किद किया गया और वो इतना कामयाब रहा है कि बाद में सुना है लोग सिर्फ उंगलियां ही चाटते रहे जाहिर है यहाँ के खाने बड़े स्पाइसी होते हैं और फिर मेरा ख्याल है गोश्त नु जिन्ने किस्मां दा पाकिस्तान में पकाया जाता है बकरा बेचारा हाथ जोड़ देंदा है मैनू क्यों वक्त पाया है कढ़ाई की जितनी किस्में इस वक्त पाकिस्तान में है ना वो दुनिया में कहीं नहीं है हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में कढ़ाई की किस्में पाई जाती हैं हर बंदे के पास अपनी एक किस्म है वो अपने तरीके से कढ़ाई पकाता है अरब मुल्कों में बहुत ज्यादा अब ये ट्रेंड है कि पाकिस्तानी खानों को इतना पसंद किया जाता है कि वो अपने घरों में पाकिस्तानी शेफ्स रखना प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी बावर्ची रखते हैं पाकिस्तानी मसाले इस्तेमाल करते हैं वाह जी वाह बहुत अच्छी जुल्फी तेरा पासपोर्ट बने चांस है यार उन्होंने शेफ रखना है डोई नहीं रखनी अच्छा जी यार अच्छा है ना इसका रहने का खर्चा चुप करके चीनी के डब्बे में घुस के सो जाया करेगा भाई मैं उन पकाने वालों में नहीं मैं खुद फूड लवर हूँ कितने कॉन्फिडेंस के साथ का फूड इतनी इसको कोई हड्डी वाली बोटी दे दे ना तो इसके 18 दिन लग जाएंगे उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उसके अंदर कितने कॉन्फिडेंस के साथ यार वाहिद फूड लवर है जेड़ा सिर्फ चख के रज जांदा है इनु चखा लेंदे ने तेरा चखवा वाला कैसा है फुल अच्छा तुम्हें याद है हमने कई बार जिक्र किया है ये जो फूड टूरिज्म है जी जी कि खाने पीने की वजह से एक दूसरे के मुल्कों में लोग सयाह खास तौर पे जाते हैं या जो फूडीज हैं वो जाते हैं यार वो मैंने कई वीडियोस देखी हैं मुझे इंज लगता है कि हारे लियो मेरा ख्याल है मजून या फक्की वाली शीशी जेब च रख दियो नहीं यार बहुत खाते हैं नहीं अब ये एक सीरियस बिजनेस बन गया है बहुत बड़ा देखो मैं एक बात बताऊं आप आपस में देख लें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो ये जब से ये आया ना सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो आपने देखा होगा कि तुर्की के बाज खाने आप YouTube पे बहुत ज्यादा देखते हैं वो जो नुसरत है वो साल्ट पे वाला वो जो खास अंदाज से मसाले या नमक छिड़कता है उस पे वो बड़ा पॉपुलर है इसी तरह तुर्की का बुराक अज़दमीर है जो बड़े बड़े वो बकरे और वो पता नहीं क्या क्या पकाता है इसी तरह फतीह तूतक है अच्छा और ये सारे लोग जो है ना इन्होंने बाकायदा तुर्की की तरफ लोगों का ध्यान पड़वाया है क्या इसकी बात तो आवाज भी इसी तरह मारते हैं फती तूतक तूतियां ए जमालो फती तूतक तूतियां ए जमालो फती तूतक तूतियां ए जमालो अब तुम देखो कि तुर्की इससे फायदा कैसे उठा रहा है
तुर्की पहले अपनी खूबसूरती की तरफ एल्योर करता था बहुत ज्यादा, अभी भी तुर्की बहुत खूबसूरत है और जाहिर है वहाँ पे तारीखी मकामात भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब तुर्की का जो मेन फोकस हो गया है ना वो खाना पकाना हो गया, वो फूड हो गया, वो वहां पे उसको अपना सेंट्रल पिवटल पॉइंट बना लिया उन्होंने अपने टूरिज्म का कि साड़ी रोटी खाना हुए थे। और जैसे यही अब हो रहा है। अब देखो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक जो पोटेंशियल है ना फूड टूरिज्म का वो 20 अरब डॉलर है और अभी उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन चूंकि ये कोरोना है, कहा यह जा रहा है कि कोरोना खत्म होने के फौरन बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े फूडीज हैं, फूड व्लॉगर्स हैं, उनको जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बाद तवज्जो का मरकज जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा दुनिया के। हमने तुम्हें याद है कि हमने कुछ अर्सा पहले उसका जिक्र किया था मार्क वीन्स का। हाँ, ये पहले हुआ क्या हुआ याद है ना? अच्छा, मार्क वीन्स ने पूरे पाकिस्तान का उसने विजिट किया था, उसको बड़ा पुरतपाक उसका खैर मकदम किया गया था। मार्क वीन्स ने अपने ताजा तरीन व्लॉग में पता क्या बात कही है? उसने कहा है कि अगर मुझे हवाई जहाज का एक टिकट दिया जाए और कहा जाए किसी एक मुल्क में जाओ और एक डिश खाओ तो मैं पाकिस्तान का इंतखाब करूंगा वहां के चपली कबाब खाने के लिए। अरे वाह, ये कढ़ाइयों वाली बात उसने कही है। उसने कहा कि कढ़ाई ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया और जितनी किस्म की कढ़ाइयां पाकिस्तान में बनती हैं कहीं नहीं बनती। हाँ, मैंने सुना है कि इतने उसने पाकिस्तानी खाने खाए हैं कि वापस जाके अमेरिका अपने महल्ले चोची बड़का भी मार दे। उसके बाद तुम देखो जो दुनिया के मशहूर फूड ब्लॉगर्स हैं, इसके अलावा मार्क वीन्स के बाद फिर ट्रेवर जेम्स है, ल्यूक मार्टन है, डैना वैंग है और कार्ल रॉक है, खालिद अल अमीरी है। इन सब ने पाकिस्तान के खानों के मतलब तारीफों कसीदों के पुल बांध दिए और पूरी दुनिया में एक शोर है इस वक्त पाकिस्तानी खानों का। तो अगर इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज किया जाए, इसको इस पर फोकस किया जाए तो पाकिस्तान ये जो 20 अरब डॉलर का टारगेट है या जो अंदाजा है, चले इतना ना सही, मैं कहता हूँ 2-4 अरब डॉलर भी पाकिस्तान को मिल जाए, पाकिस्तान एक फूड हेवन बन सकता है। बिल्कुल यार, ये लाहौर का गुलबर्ग और फिर कराची के कई इलाके वो अंदर गलियों में भी फैल गए हैं रेस्टोरेंट। असल में देखो मेरी बात सुन, जो है ना खाना वो गलियों का ही खाना है, स्ट्रीट फूड। जो भी ये फूड ब्लॉगर्स है ना ये नहीं देखते कि रौसा जो है, नवाब जो है, बड़े बड़े जो गेस्ट हाउसेज और बड़े बड़े वहां पे क्या पकता है, वो ये देखते हैं कि गलियों में आम आदमी क्या खा रहा है। ये जो गलियों में बिकता है ना ये एक ये, और वो अब हमें उसमें कुछ करना पड़ेगा। जाहिर है वो टेस्टी भी बहुत होता है स्ट्रीट फूड। एग्जैक्ट स्ट्रीट फूड ही है। मुझे याद है अल्लाह बख्शे लियाकत सोल्जर साहब कराची में जाता था ना, तो वो अपने मोहल्ले में उधर उस इलाके में कहीं ले जाते थे मुझे, जहां पे जमीन पे ना जी ऐसे पतीले रख के तो बिरयानी बेच रहे होते थे। अच्छा लो जी, ऐसी बिरयानी पूरी कराची च नहीं लभदी जेड़ी उन्हें थड़े ते लाई हुंदी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लियाकत सोल्जर मरहूम ने कमाल मेजबानी की है इसकी। पहले 5-6 दफा तो उन्होंने की है, बाद में उनके नंबर पे कराची पहुंच के रिंग करता था, जवाब आता था आपका मतलूबा नंबर बंद है। नहीं, आपका मतलूबा नंबर सोया हुआ है। नहीं यार, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत मेरे बड़े प्यारे यार, बहुत ही प्यारे। अच्छा, एक ये जो है ना अब हमें भी थोड़ा सा ना जागना चाहिए। जब हम इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं और थोड़ा सा सफर भी इस तरफ शुरू हुआ है, तो हमें अपने ये जो स्ट्रीट फूड है ना इसको एक तो शर्त पूरी करनी पड़ेगी, वो है हाइजीन। इसको साफ सुथरा बनाना पड़ेगा प्लीज, कि अंग्रेज खा सके। पहली बात तो कि अंग्रेज देख सके ठीक बन रहा है, फिर उसको खा सके और फिर उसको डाइजेस्ट भी कर सके। ये सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तुर्की वाले कोफ्ते बनाते हैं? हाँ, तुर्की का कोफ्ता बड़ा जबरदस्त है यार। तुर्की का पिडे जो हम नान के ऊपर कीमे वाले नान, वो इसको पेड़े कहते हैं, उसकी शेप थोड़ी फर्क होती है, वो बड़े जबरदस्त होते हैं वहां के पेड़े। इसी तरह वहां के बकलावा, बकलावा वो यूनिक चीज है, वो बकलावा ही बेचते जा रहे हैं तुर्की पूरी दुनिया को। फिर तुर्की का अडाना कबाब, फिर सिकंदर कबाब। वाह जी वाह। अच्छा भाईजान, जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि देखें इस वक्त जो वर्ल्ड फूड टूरिज्म है ना वो ताजा तरीन जो उसके फिगर्स हैं, होश गुम कर देने वाले फिगर हैं। 1176 अरब डॉलर
की इंडस्ट्री है, फूड टूरिज्म। लोग सिर्फ खाना खाने के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं। 1176 और कहते हैं कि 2027 तक ये जो रकम है ये 1800 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। वाह वाह वाह। अच्छा गोगा, तुम्हारी गुफ्तगू सुन के ये सोच रहा है कि यार इसका मतलब है मेरे मैदे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। लेकिन यार बदकिस्मती की बात यह है कि जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है ना कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए कारआमद नहीं है, तो गोगे ने तुर्की जैसे किसी एक दो मुल्कों के 2-4 चक्कर लगाने हैं, तो उन्होंने गोगे का पासपोर्ट पकड़ के ऊपर ठप्पा लगा देना है कि ये पासपोर्ट गोगे के लिए कारआमद नहीं है। नहीं तो 3-4 मुल्कों ने रल के शाह महमूद कुरैशी साहब को अपील करनी है, तो पाकिस्तानी इमिग्रेशन वालों ने पासपोर्ट में लिखवा देना है ये पासपोर्ट इसराइल और गोगे के लिए कारआमद नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मेरे पासपोर्ट के गोगा नहीं मोहम्मद रमजान लिखा हुआ है। बेटा ये भी तुम्हारी भूल है, जब तुम खाना खाओगे ना वहां जाके तो वो गोगा मोहम्मद रमजान क्या तुम्हारे दादा का नाम भी साथ लिखते हैं, पता करा के लिखेंगे, अपनी एजेंसियों को इस काम पे लगाएंगे। अपने नहीं चाहते कि मैं खाना बिल्कुल यार नहीं चाहता मैं किसी मुल्क का दुश्मन क्यों हूं यार। अपने ही गिराते हैं मैदे पे बिजली। बात मैं ये बताने लगा था कि देखो जो मुल्क सीरियस है ना इसमें, उसमें मैक्सिको सरे फहरिस्त है। मैक्सिको में हर साल 3 करोड़ टूरिस्ट जाता है। 21 अरब डॉलर खर्च करके आता है वहाँ। और मैक्सिकन डिशें जो हैं वो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, यहाँ पर भी अक्सर जी लख पकान मैक्सिको डिशां, मगर उत्थे तुहानू गंदलां दा साग नहीं लभ सकदा। गंदलां दा साग ते मक्खन मकई रिन के ले आई हैं मैं सज्जनों के लिए। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। दाल चावल खाते हुए जो पचाका निकलता है ना उसको रोकने के लिए साइलेंसर भी इजाद कर रहे हैं। जुनैद साहब साइलेंसर की जरूरत नहीं होती। क्यों जी? ऐसे पीछे गुत्ती च कटांट मारो ना तो पचाका रुक जाता है। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए साइंस फॉर टेक्नोलॉजी मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ आप लोगों से मिलके, वैसे भी आपके साथ इतनी मोहब्बत दोस्ती है कि मजा आ जाता। हमें भी बड़ी खुशी होती है चौधरी साहब। जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं आज भी 5 किलो गंडेरियां लेके आया हूँ। नहीं जैसा ये पता आपके आने पे खुश क्यों होता है जी, जब भी आप तशरीफ लाते हैं तो आपकी पसंदीदा वो जो चिकन पैटीज हैं हम वो मंगवाते हैं आपके लिए, और ये खिड़की में से घूर रहा होता है कि आप शायद कोई एक आधी छोड़ जाए, लेकिन आप भी ऐसे महान आदमी हैं एक दफा भी नहीं छोड़ के गए। जुनैद साहब मैंने पहले शो पे इसकी ताका झांकी देख ली थी, मैं भी इसलिए सारे खत्म करके जाता हूँ। चौधरी साहब मैं तो आपका बिल्कुल जेन्युइन फैन हूँ। आप चांद का बताते हैं खैर से, और कुछ लोग मुझे चंद कहते हैं, और मैं सिर्फ आपकी वजह से ही चांद का बताता। अच्छा जैसा ये फरमाइए, मैं सोच रहा था जब आप शो में तशरीफ लाएंगे तो आपसे जरूर पूछूंगा, आप जब भी पाबंदी लगती है टिकटॉक पे पाकिस्तान में तो आप उसकी मुखालफत करते हैं, क्या वजह? आपको टिकटॉकर से इतनी हमदर्दी क्यों है आखिर? जुनैद साहब देखें हमारे पास खुशियां हैं कितनी, ये जो चंद खुशियां हैं इन पे भी अगर हम पाबंदी लगा बैठेंगे तो लोग बेचारे बड़े मायूस हो जाएंगे। ये सारी खुशियां टिकटॉक से जुड़ी हुई हैं आपकी। जुनैद साहब अगर आप डिटेल से किसी दिन टिकटॉक देखें ना तो सारी खुशियां उसमें होती हैं। अच्छा ऐसा कौन सी खुशियां? सारी। जैसा इखलाकियत का जनाजा निकल जाता है। नहीं देखें जुनैद साहब, अगर किसी चीज में कोई गलती है तो उसको खत्म करना चाहिए, ना कि वो चीज ही खत्म कर दी जाए। देखिए दाल चावल कितनी अच्छी चीज है, अगर कोई खाते हुए पचाके मारता है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दाल चावल हराम है। भाई दाल चावल तो बड़ी अच्छी चीज है, हाँ उसे खाने का तरीका आना चाहिए। अच्छा पता है आपको फवाद जो ऐसा साइंस के वजीर हैं जी ये दाल चावल खाते हुए जो पचाका निकलता है ना उसको रोकने के लिए साइलेंसर भी इजाद कर रहे हैं। सब साइलेंसर की जरूरत नहीं होती। क्यों जी? ऐसे पीछे गुत्ती च कटांट मारो ना तो पचाका रुक जाता है। चौधरी साहब ये एंकर शादियों पे पचाके मारते हैं जो आप थप्पड़ मार देते हैं।
देखें पचाके सिर्फ दाल चावल के ही नहीं निकलते, गुफ्तगू के भी निकलते। अच्छा, गुफ्तगू में भी पचाका बहुत बुरा लगता है। मेरा मतलब ये है कि तरीका आना चाहिए हर काम का। और ये मिसाल मैंने खाने पीने की इसलिए दी है कि आपके दानिश्वर माशाल्लाह पसंद करते हैं। देखे ना, ये सेंटर वाले दानिश्वर के मुंह से स्माइल ही नहीं खत्म हो रही। जैसा आपकी तलाक के लिए अर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई दानिश्वर भी गोश्त के बगैर डिश की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। बहुत अच्छा। नहीं तो मैं माफी चाहता हूँ, मैंने वजाहत नहीं की, मैंने दाल में गोश्त डाला है। आपको समझ जाना चाहिए, गोश्त विच पाइए तो पचाका निकल रहा है। और पचाका जो है जुनैद साहब, मैं इस पे रिसर्च करवा रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि हमारे मुल्क को पचाके ले बैठे हैं। हाय हाय। सियासतदान जो हैं वो कुर्सी पे बैठ के पचाके मारने शुरू कर देते हैं। खूबसूरत बात की। सरकारी मुलाजमीन दफ्तरों में बैठ के पचाके मार रहे होते हैं। कई तो हर डील में सौदेबाजी करने के पचाके मार रहे होते हैं। अरे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ जुनैद साहब, कुछ पे जोर दे रहा हूं मैं, हाँ, सही सही। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी जर्नलिज्म में पचाके मारते ओहो, हैं। इसलिए गुस्सा चढ़ जाता है। वो कोई भी किसी के खिलाफ बात करे और वो झूठ हो, वो गुस्सा चढ़ सकता है। तो बात क्या हो रही है, आप पचाका लेके बैठ गए बीच में, टिकटॉक की बात हो रही थी। तो जुनैद साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि टिकटॉक को बंद नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना एक विजन है। मेरा ख्याल है, ये समझता हूँ कि टिकटॉक को बंद करने की बजाय जो लोग टिकटॉक पे बदतमीजी करते हैं या फाहिशी फैलाते हैं या गलत चीज कोई टिकटॉक पे डिस्प्ले कर देते हैं, तो सब मौतें हो जाती हैं। मौतें हो जाती हैं। देखे ना, इन चीजों पे पाबंदी होनी चाहिए, इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। हाँ जी। ऐसी जगह पे जाके आप टिकटॉक ना बनाएं जो रिस्की है। बिल्कुल सही। हम 50 दफा ये कह चुके हैं कि भाई ये रेलवे लाइन पे खड़े होके या ये पुलों पे खड़े होके आप टिकटॉक मत बनाएं, बिल्कुल सही। क्योंकि वो रिस्क है। बिल्कुल सही। आपने टिकटॉक बनानी है, आप अपने घर में खड़े होके बना लें। अच्छा चलें, जैसा टिकटॉक को छोड़ें, ये फरमाएं कि आप फिर जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे मैंने किस लिए जाना है, मैं उबर चलाता हूँ। मेरा मतलब है, आपने बयान दिया है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान कर दें, तो मैं एयरपोर्ट पे लेने जाऊंगा। नहीं, वो तो मैं बाखुशी जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। मियाँ साहब ऐलान करें, मियाँ साहब हमारे भाई हैं, वो जो उनके पे केस हैं उनको आके वो उनका सामना करें, मैं खुद उनको लेने जाऊंगा, बल्कि मैं सीधा जाके छोड़ के आऊंगा नैब के दफ्तर। इसका मतलब है आप अपने साथ हथकड़ी लेके जाएंगे। नहीं जुनैद साहब, मैं वफाकी वजीर है, मैं कोई छोटा थानेदार नहीं। मैं उनको राइड दूंगा, मैं उनको वहां से उठा के तो नैब के दफ्तर में छोड़ के आऊंगा। और जाहिर है नैब के दफ्तर में कोई बालों की कटिंग तो होती नहीं है। वहां पे यही मामलात हैं, हथकड़ी, इन्वेस्टिगेशन, अदालत में पेशी। अच्छा, जैसे एज मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, बहुत ज्यादा आप जोर देते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के असूल के लिए। इसकी क्या वजह है, क्यों आप इतना ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करते हैं ड्रोन पे? देखिए जुनैद साहब, सड़कों पे जितना रश पूरी दुनिया पे नजर आना शुरू हो गया है, सड़कों पे रश कम करने के लिए, उनको सहल बनाने के लिए बाई एयर का सहारा लेना चाहिए। तो ड्रोन पे बैठ के बंदे जाया करेंगे? ये बंदे ना जाएं। अगर मेरा मतलब है कि किसी शख्स ने दुकान पे रोटी देने जाना है तो वो खुद ना जाए, ड्रोन रोटी दे आएगा। और उसका फायदा है, रास्ते से ड्रोन बुरकी भी नहीं लाएगा। जैसा एक मिनट, जो भी कोई नई साइंसी इजाद होती है उसके सारे पहलू देखे जाते हैं। अब आप ड्रोन बना दे, रोटी ले जाने वाला वो लेके जा रहा है, नीचे गोगे जैसा बंदा जा रहा है, वो जाने देता ड्रोन? नहीं जुनैद साहब, ड्रोन इतनी हाइट पे होता है कि आप उसको अच्छी तरह असेस नहीं कर सकते कि वो रोटी लेके जा रहा है या बम लेके जा रहा है। जैसा आप हमारे गोगे को असेस नहीं कर सकते, फिर ये तो 500 मील से दूर की खाने पीने की चीज सांस से अंदर खींच लेता है। तो ये भी तो हो सकता है ना जुनैद साहब कि गोगा सांस से ड्रोन खींचे और ड्रोन के साथ बम बजे हुए वो बजाय रजंदे पाट जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को आप बिल्कुल भूल जाएं, इंशाल्लाह ड्रोन का बड़ा फायदा होगा। चलिए सर, एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी। ये जैसे कह रहे हैं कि रोटी लेके जाएगा ड्रोन, तो क्या शोरबे वाला सालन जा सकता है ड्रोन में? यार क्यों नहीं जा सकता, ड्रोन लीक कर दे, शोरबे वाला सालन भी जा सकता है। और आप हैरान होंगे सुन के, उसके ऊपर छोटा सा पंखा लगा होता है, पंखा चलेगा, सालन ठंडा हो जाएगा, शोरबा जम जाएगा उसी वक्त। ओहो, चौधरी साहब जे जम जांदा ना, फिर मैं ते हवाई खाना ना खस गया। ਇਹ ਸਭ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਲਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ।
नहीं तो उसका भी बंदोबस्त है, आप जाएं पनाहगाह, वहां पे फलाई खाएं। जैसा कि दुनिया का वाहिद आदमी है जो फ्लाई खाना खाते हुए भी कहते हैं इसको फ्राई कर दो। जाहिर है आदत तो नहीं ना बंदे की खत्म। तो जुनैद साहब, ड्रोन के और बहुत से फायदे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के आंखें मलते हुए दही लेने जाते हैं, जी जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠੋ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਤੋਂ ਮਲਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਡੋਲ ਹਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬੰਨਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਹੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मुनव्वर ज़रीफ जिस फिल्म से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए, हाँ जी, और जिसको बनाते बनाते इंडिया वाले थक गए, नौकर वोटी दाना बनी उनसे, बिल्कुल उसके राइटर भी शेख इकबाल। शेख इकबाल। अच्छा जी, जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अजीम फनकार हुए हैं, यानी जिनका शुमार असातिज़ा में होता है, हाँ जी। मैं उनको अपनी नई नस्ल से जरा थोड़ा मुतारफ कराना चाहता हूँ, चूंकि वो कई अरसे से काम नहीं कर रहे, दुनिया से चले गए। जी। जी, तो अगली नस्ल हमारी उनको जो नहीं जानती उनको भी चाहिए कि वो जाने हमारे जो हीरोज गुजरे हैं। जी, उसमें पिछले हफ्ते मैंने अलाउद्दीन साहब का जिक्र किया था। जी, जी, जी। इस दफा मैं आपको बता रहा हूं एक और उस्ताद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, शेख इकबाल साहब। शेख इकबाल जो है ना जी, उनका शुमार भी असातिज़ा में होता है। बिल्कुल सही। बतौर कहानी नवीस तो उनके क्रेडिट पे बहुत बहुत बड़ी फिल्म है। जी, जी। वैसे उन्होंने एक्टिंग भी कोई 166 फिल्मों में की हुई है, और बड़ी खूबसूरत रोल को वो बनाते थे, अच्छा। बड़ा प्यारा पेंट करते थे। मगर कहानी नवीसी जो है ना उनकी, हाँ जी। 1956 में बनने वाली जो कामयाब तरीन फिल्म थी उस वक्त की, माही मुंडा, जी, ये भी शेख इकबाल साहब की लिखी। अरे वाह वाह। अच्छा, फिर एक इतनी बड़ी फिल्म जिसने फिल्म इंडस्ट्री को, मतलब आप कहें कि 4 चांद लगा दिए। नई नई फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई थी, जी, जी, यक्के वाली। ओह माय गॉड, मुसरत नजीर की। यक्के वाली वो फिल्म हुई है जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि बारी स्टूडियो बना ही यक्के वाली से था। अच्छा, क्योंकि बारी स्टूडियो के जो अब्दुल बारी जो उनके मालिक बाद में बने, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। जी। उनको इस फिल्म से इतनी आमदन हुई कि उन्होंने कोई 96-97 कनाल जमीन लेके तो उस पे इतना बड़ा स्टूडियो, अरे बारी स्टूडियो बना दिया। वाह वाह। वाह जी, इस फिल्म के डायरेक्टर माही मुंडा के भी एमजे राणा साहब थे, जी, जी, और यक्के वाली के भी डायरेक्टर एमजे राणा क्या साहब। बात हमारी खुशकिस्मती है कि हमने एमजे राणा साहब के साथ थिएटर भी किया हुआ है, और राणा साहब ने जिस तरह फिल्म में रिकॉर्ड आज तक कायम किया है यक्के वाली का, हाँ जी, उसी तरह थिएटर में भी आप सुन के ये हैरान होंगे कि शर्तिया मिठे जो ड्रामा था हमारा, जी, उसके डायरेक्टर एमजे राणा साहब। अरे क्या बात है, क्या क्या बात बात। वाह। क्या बात है, बहुत बड़ा आदमी हुआ है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। उन पे भी किसी दिन तफसील से बात करूंगा। जी। जी, और बहुत सी हिट फिल्में हैं शेख इकबाल साहब के क्रेडिट पे, जी। जिसमें पंज दरिया, नौकर वोटी दा, ये भी शेख इकबाल साहब की लिखी। अच्छा, मुनव्वर ज़रीफ जिस फिल्म से पूरी दुनिया में पॉपुलर हुए, हाँ जी, और जिसको बनाते बनाते इंडिया वाले थक गए, नौकर वोटी हाँ। दाना बनी उनसे, बिल्कुल। उसके राइटर भी शेख इकबाल। शेख इकबाल साहब। फिर अनोखा दाज, ये दाज जैसी लानत पे बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई हुई है अनोखा दाज। जी, फिर दुनिया मतलब दी, फिर उस्ताद शागिर्द, फिर हशर नशर, बहुत बहुत बड़ी फिल्म लिखी है। जी, अच्छा, फिर शेख इकबाल साहब रेडियो पाकिस्तान के बड़ी मारूफ आवाज थे। जब उर्दी आवाज में निजामुद्दीन साहब के साथ भी वो बैठे। अच्छा। उनके साथ भी। हाँ, इशफाक अहमद साहब का जो प्रोग्राम था तलकीन शाह, जी जी। उसमें हदायतुल्लाह का रोल करते थे। आवाज बड़ी कमाल थी शेख साहब की, मैं शेख साहब से मिला हुआ, हदायतुल्लाह। बड़े कमाल, बड़ी रोबदार गरजदार आवाज थी। अच्छा, अच्छा, रेडियो की चूंकि क्वालिटी ही आवाज होती है, हाँ जी। इसलिए शेख साहब वहां पे बड़े फिट थे। मगर बतौर अदाकार आके फिल्मों में भी उन्होंने ऐसा ऐसा रोल किया है, खास तौर पे विलन करते थे बड़ा साजिशी सा। वैसे तो हमारे जहन में होता है ना विलन मार कुटाई, बंदूक हाँ की जी, हाँ फाइट, जी। ये वो नहीं, ये करते थे परफॉर्मेंस वाला विलन। हाँ जी, हाँ जी। उसको ऐसा पेंट करते थे, और उसमें कोई ना कोई जो है ना जी कंटिन्यूटी जी, बना लेते थे, जो फिक्रा बार बार कहना होता है ना, हाँ तो जी, जुमला छोड़ते थे हैं जी। ऐसा कोई जुमला छोड़ते थे कि अगर ये फिल्म में कोई जुमला छोड़ते थे तो फिल्म बीन बाहर निकल के सिनेमा से
इन्हीं का वो फिक्रा कह रहे होते हैं, ऐसा ऐसा फिक्रा बोला हुआ। अच्छा, भट्टी पिक्चर्स उस वक्त की बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी जी उनकी फिल्म थी चन मखना, उसमें इनका तकिया कलाम था छड़ांगा मैं भुन के, अच्छा कख नहीं रहा मेरा ते तीला नहीं रहन देना मैं तेरा। बहुत पॉपुलर। अच्छा, भट्टी पिक्चर्स की एक और फिल्म थी जिंद जान, जी उसमें इनका तकिया कलाम था, ओ मैं कानूनी बंदा ते मैं ते मारांगा कानून दी मार। फिर इन्हीं की लिखी हुई अनोखा दाज, ऐसा प्यारा रोल किया था उसमें शेख साहब ने, जी। और इनका तकिया कलाम ज़बान ज़दे आम हुआ उस फिल्म का जो था, जी। ओ तेनू लड़न कखियां कीड़ियां, ओ तेनू लड़न कखियां कीड़ियां, ओ तेनू लड़न कखियां कीड़ियां। बहुत अच्छा रोल किया हुआ। एक तकिया कलाम और मुझे याद है उनका, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਸਾ ਛਿੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਮੜ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ऐसा नेचुरल सा होता था ना फिक्रा इनका कि वो ऐसे लगता था कि वाकई किसी मोहल्ले का किसी गली का कोई बंदा का है। हाय हाय, इतने बड़े बड़े फनकार हमने कहाँ छुपा के रखे हुए। अब प्रोग्राम मोक लवे एक थां है तेनू वहावांगा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि हम भी अजीब कौम है, हक बात भी वही पसंद करते हैं जो हमारे हक में हो। बहुत अच्छी। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।